ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ آداب دوستو، میں مومن مولائی آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک معروف نام ہیکنگ، ٹریکنگ اور ایڈونچر سپورٹس کے حوالے سے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنا مشکل اور اتنا مہنگا شوق پالا، اور یہ کب سے ان کے ساتھ شروع ہوا۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر، الحمدللہ perfectly fine. Thank you so much جزاک اللہ for having me. اور سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ شوق کب سے اور کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا انسپائریشن ہے کوئی، یا بچپن سے کوئی آپ کے یہ شوق تھا، یا کس وجہ سے یہ شوق پیدا؟ اچھا، ایسا ہے کہ مجھے بیسیکلی جو سینری ہوتی ہے نیچرل، تو وہ مجھے دیکھنے کا شوق تھا بچپن سے. تو میں ایڈمائر ہوتا تھا یہ جو اس طرح کی تصویریں ہوتی تھی یا جو کیلنڈر ہوتے تھے، تو یہ مجھے بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے. تب جو کیلنڈر اویلیبل ہوتے تھے وہ آپ کو کلام کی تصویریں دکھاتے تھے، یا ناران کی کچھ تصویریں، یا اسکردو کی چند تصویریں. ٹھیک ہے، تو میرا جو نیچر سے جو لگاؤ تھا وہ یہاں سے شروع ہوا، تصویریں دیکھ کے. صحیح ماشاء اللہ. اچھا، یہ بڑا مہنگا شوق بھی ہے اور بڑا جان لیوا بھی ہے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے یہ علی ستپارہ والا معاملہ بھی ہوا تھا، اور ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ایسی انسپائریشن ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ لوگ اس طرف بہت زیادہ شوق سے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کو نیچر سے محبت ہے تو جب آپ ہائکنگ ٹریکنگ شروع کرتے ہیں تو یہ محبت آپ کی بڑھ جاتی ہے. جوں آپ اس سینری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مزید آگے جانے کا، آگے ایکسپلور کرنے کا دل کرتا ہے. تو اسی طرح ہائکنگ ٹریکنگ ایک ایسا شوق ہے کہ جس میں آپ خوبصورت تصویریں، خوبصورت ویڈیوز آپ بناتے ہیں، آپ سینس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کا جو شوق ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ نیا دیکھوں، کچھ ڈفرینٹ دیکھوں. ٹھیک ہے، بالکل اور یہ میں لوگوں کو بھی دکھاؤں. یہ تو بالکل پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل بیوٹی ہمیں دی ہوئی ہے وہ بے تحاشا ہے. ٹھیک ہے، بالکل میں اگر بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ بالکل دنیا کے کسی بھی ملک سے کمپیئر کریں تو دنیا کے سارے ملک ملا کے بھی ہم سے وہ نیچے ہیں. یعنی کہ اتنی ڈائیورس ہے، اتنی رچ ہے، اتنی زیادہ ورائٹی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو میرا جو شوق ہے وہ اسی طرح سے بڑھتا گیا کہ میں خوبصورت سے خوبصورت تصویریں، خوبصورت سے خوبصورت جو سین ہے وہ کیپچر کر کے لاؤں اور اپنے لینس سے پاکستانیوں کو اور دنیا کو دکھاؤں. صحیح. اچھا، میری گزارش ہے کہ بہت زیادہ گورے پاکستان میں آتے ہیں اس حوالے سے، ہیکنگ کے حوالے سے، ٹریکنگ کے حوالے سے، اور لاکھوں روپے بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو ایسی وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور یہ اتنا سارا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ والا. بیسیکلی کیونکہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری جو دوڑ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیٹ تک محدود ہے، کیونکہ ہم بیسک نیسیسٹیز کو ہی ابھی تک حاصل نہیں کر پائے. تو ایکسپلوریشن یا ایڈونچر یا سپورٹس یا یہ والا جو کام ہے، ٹریول والا کام جو ہے، وہ اس سے ابھی ہم بہت زیادہ دور ہیں. گورے کیونکہ افورڈ کرتے ہیں، دوسرا ان کو سینس ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے، ان کو ٹریول کی سینس ہے، ان کو ایڈونچر سپورٹس کی سینس ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ شوق بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ریسرچ بھی کرتے ہیں. دس از وائی کہ 100 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے وہ لوگ قراقرم، ہندو کش اور ہمالیہ میں آ رہے ہیں اور ان جگہوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ایکسپلور کر کے وہ بکس لکھ رہے ہیں، وہ ان پہ اسٹڈیز کرتے ہیں. میپ اگر میں بات کروں تو جو میپ ہے وہ انہوں نے ہی بنائے ہیں، قراقرم کے یا ہمالیہ کے یا ہندو کش کے، جن کے ذریعے آج ہم مستفید ہوتے ہیں اور جاتے ہیں. صحیح ہے، یعنی کہ جو ہماری ساری یہ چوٹیاں ہیں، یہ جگہیں، ان کے بھی میپس گورے نے بنائے. ایگزیکٹلی. تو کتابیں انہوں نے لکھی، میپس انہوں نے بنائے، انفارمیشن انہوں نے ہمیں دی. تو ہم جو آج مستفید ہو رہے ہیں یا جو ٹریکس کر رہے ہیں، یا ان ٹریکس کے جو نام ہیں ایون، وہ ہمیں ان کی کتابوں سے ملتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں اس حوالے سے، ہیکنگ ٹریکنگ کے حوالے سے کیا پوٹینشیل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، دنیا کی جو 3 بڑی ماؤنٹین رینج ہے بائی ہائٹ، وہ لکیلی پاکستان میں ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں کچھ پورشن ان کا پاکستان میں. قراقرم تو کمپلیٹ پاکستان میں، تھوڑی سی وہ چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہمالیہ جو ہے وہ 4-5 ملکوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن بہت سارا پورشن جو ہے اس کا پاکستان میں بھی ہے. اور جو ہندو کش ہے، 3rd بگیسٹ ماؤنٹین رینج بائی ہائٹ، ٹھیک ہے، وہ اگر میں بتاؤں تو 60% 70% پاکستان میں، اور باقی جو ہے کچھ. یہ پوری دنیا میں ہندو کش؟ نہیں، پوری دنیا میں نہیں، پاکستان اور افغانستان میں ہے یہ. اچھا، بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بائی ہائٹ جو بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں وہ 3 ہیں: قراقرم، ہمالیہ اور ہندو کش. ٹھیک ہو گیا. ہندو کش جو ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان میں ہے. پاکستان میں اس کا 60% سے زیادہ پورشن ہے. ہمالیہ جو ہے وہ 5 ملکوں کو کنیکٹ کرتی ہے، ان میں سے ایک ملک پاکستان بھی ہے. تو ہمالیہ کا بہت سارا حصہ پاکستان میں بھی ہے.
कराकरम जो है वो मेजरली पाकिस्तान में है। आप कह सकते हैं कि 80 to 90% जो है वो पाकिस्तान में है, बाकी जो 10 to 20% है वो चाइना में है। यही वजह है कि जो फॉरेनर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। वो रॉक क्लाइंबिंग करने आते हैं, वो ट्रैक करने आते हैं, वो माउंटेनियरिंग करने आते हैं, और अब पैराग्लाइडिंग करने भी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, ये गुजारिश करूँगा मैं कि कभी ज़िंदगी में ट्रैकिंग करते हुए कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जहाँ पे आपको महसूस हुआ हो कि ये बड़ा मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा है, या कभी ऐसे लगा हो कि यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है, या मैं किसी ऐसी दलदल में फंस गया हूँ, या ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आप समझते हो कि आपकी लाइफ का, इस लाइफ पर, ट्रैकिंग की लाइफ सबसे यादगार हो, तो क्या कहेंगे इस हवाले बिल्कुल ऐसा है। हम लोग जो ट्रैक सेलेक्ट करते हैं कराकरम में ऊपर, वो मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप चैलेंजिंग ट्रैक सेलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें मुश्किलात भी पेश आएंगी। तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे जो है वो डेज़ आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको इंतहाई डेंजरस स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। तो वापसी में उसका कोई रास्ता नहीं होता, आपने आगे ही जाना है, तो आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल सही है। गो कि हम लोग टेक्निकल टीम साथ लेके जाते हैं, गाइड हम प्रॉपर लेके जाते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जाते हैं, सही तो है। मैयर सारे लेते हैं, तो उस टेक्निकल टीम के पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन इवन देन आपको रिस्क लेना पड़ता है। अदरवाइज जो है आप ये वाले ट्रैक्स नहीं कर सकते। यहाँ रिस्क फ्री वाले ट्रैक कर लें, ठीक है। तो अगर रिस्क फ्री वाले करने हैं तो उसमें तो ज़ाहिर है ये वाले मामलात ही कोई नहीं, तो हम तो करते ही रिस्क वाले और चैलेंजिंग वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उसमें हमें बाज़ औक़ात एक दिन, बाज़ औक़ात 2 दिन इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि उसमें लाइफ ख़तरे में डालनी पड़ती है। कभी डर नहीं लगा ये अली सदपारा वाले और दीगर वाक़यात सुनने के बाद? कभी ऐसा नहीं सोचा कि आज के बाद ये नहीं करनी और बस ये, या जुनून की हद तक है कि मतलब ज़िंदगी दांव पे लगाई हुई है कि ऐसा करना ही है चाहे जो भी हो जाए? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जुनून की हद तक शौक़ तो है ही है। सही है। हम अपने तय सारी कोशिश करते हैं कि हम सेफ प्ले करें और मेयर्स प्रॉपर लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा जो है वो ख़तरा ना आए, लेकिन फिर भी आपको ख़तरा मोल लेना पड़ता है, ख़तरों से गुजरना पड़ता है। अली सदपारा वाला जो केस था वो तो ज़रा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, उसके ऊपर आप डेथ जोन है, डेथ जोन में ये वाला रिस्क रहता ही रहता है। अच्छा। हम लोग उस लेवल पे तो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि डेथ जोन के ऊपर हम नहीं जाते, हम लोग 6000 से नीचे रहते हैं। सही है। जबकि जो डेथ जोन है वो 7000 मीटर से ऊपर स्टार्ट होता है वो। अच्छा। तो वहाँ के डायनामिक्स और हैं, ट्रैक के डायनामिक्स और हैं। और हैं, सही है। हाँ, तो हमें जो ट्रैक के दौरान जो ख़तरे आते हैं वो क्रेविस आता है, क्रेविस रीजन होता है जिसको क्रॉस आपने करना है, उसमें गिरने के ख़तरात आते हैं। यहाँ पास से आप डिसेंड कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, एवलांच आ सकता है। तो एवलांच जो है वो माउंटेन पे भी आ सकता है, वो पासेस में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको कोई बंदा भी डिटरमिन नहीं कर पाता कि ये आने वाला है या नहीं आने वाला। ये उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको गुजरना पड़ता है। जिन डेज़ में आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आप वहाँ पे रुक तो नहीं सकते, आपके पास लिमिटेड राशन होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो आप उन्हीं दिनों में आपने उसको क्रॉस करना है। सही है। तो उस रिस्क से गुजर के ही आपने उसको क्रॉस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे तारीखी हिस्टोरिकल कोई ट्रैक्स जिनसे बड़ी कोई तारीख वाबस्ता हो, जुड़ी हुई चीज़ें हों, कोई ऐसे नाम? अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे तारीखी ट्रैक हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो आपको पता है कि बरतानिया रूल कर रहा था। सही। तो बरतानी जो फ़ौज थी, जो उनकी आर्मी थी, उन्होंने कराकरम को बेसिकली एक्सप्लोर किया। K2 को, K1 को, ये सारे जो नाम दिए गए ये उन्होंने दिए, मैपिंग की तो उन्होंने की। तो सबसे पुराना कराकरम रेंज के ऊपर जो एक ट्रैक है उसका नाम है मुश्ताक पास। अच्छा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मुश्ताक पास करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया भी। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किसी और पाकिस्तानी टीम ने अभी तक नहीं किया हुआ। अच्छा। तो ये हम कुछ 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुश्ताक पास जो है वो स्टार्ट होता था, मैं पाकिस्तान बनने से पहले की अगर बात करूँ तो ये श्रीनगर से स्टार्ट होके स्कर्दू से और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले से गुजर के ये तुर्किस्तान जाता था, जो आज चाइना है, ठीक है। इसी रास्ते से ट्रेड भी होती थी, इसी रास्ते से लोकल भी जाते थे, ठीक है। तो ये वाला जो पास है ये यूज़ में था ये, ठीक है। फिर ये वाला पास बंद हो गया, कम यूज़ में आया, लेकिन गोरों ने ये वाला ट्रैक किया हुआ है, उन्होंने बुक्स में इसका जिक्र किया हुआ है। तो हम लोग वाहिद पाकिस्तानी टीम है कि जिन्होंने ये वाला पास, मुश्ताक पास किया था ये। अच्छा, आपकी टीम ने और आपने कौन कौन से ट्रैक जो है वो जो आप समझते हो कि मुश्किल तरीन ट्रैक्स थे वो आपने किए हैं, या और आपके मतलब हदफ में कौन से हैं कि अब आप कौन से ट्रैक जो है वो करना चाह रहे हैं?
अच्छा, सबसे पहले हमारा जो मुश्किल पास था वो था खुर्दोपिन पास। अच्छा खुर्दोपिन पास स्नो लेक के अराउंड है। स्नो लेक ऐसा ग्लेशियल बेसन है कि उसका नाम तो लेक है लेकिन बेसिकली वो लेक नहीं है, वो एक ग्लेशियल बेसन है जिसमें 12 महीने जो है वो एक ग्लेशियर रहता है। तो उसके साइडों पे जो है बेसिकली 7-8 पासेस हैं। तो सबसे पहला जो पास मैंने किया था वो स्नो लेक के अराउंड किया था, खुर्दोपिन उसका नाम है। तो हमने स्कर्दू से ट्रैकिंग स्टार्ट की। तो हम मेरा ख्याल है 15वें या 16वें दिन के बाद हम शिमशाल वैली में पहुंचे थे, खुर्दोपिन पास को क्रॉस करने के बाद। तो ये मेरा पहला टेक्निकल पास था और मुश्किल पास था, और ये भी वाहिद पहली पाकिस्तानी हमारी टीम थी कि जिन्होंने ये क्रॉस किया था। हमसे पहले सही। मुख्तलिफ गोरों ने, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों ने इसको किया हुआ था। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो खुर्दोपिन के बाद फिर हमने हरामोश पास किया, मुस्ताक किया, सरपलागो पास किया, मशबरम पास किया। मशबरम भी हम लोग पहली पाकिस्तानी टीम है। सरपलागो भी हम अभी तक पहली वाहिद टीम है, हमारे बाद अभी तक सरपलागो नहीं हुआ। अच्छा तो अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर हमने किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्नो लेक के अराउंड जो है वो 7-8 पासेस हैं, तो स्नो लेक के 2 और पासेस मैंने किए, एक सोखा एक शिमला। अच्छा। तो इस तरह मैं स्नो लेक के तकरीबन 8 पासेस में से 3 पासेस कर चुका हूँ। और जो नेक्स्ट आपके हदफ में हो कोई? जी, नेक्स्ट जो हदफ में है वो भी स्नो लेक के अराउंड एक विरजर पास है, वो है स्कमला भी उसी रीजन में आता है, स्नो लेक के अराउंड, और एक टिलमैन पास है। तो हमारा ये 3 पासेस का लूप करने का प्लान है। तो हम हमेशा लूप प्लान करते हैं, एक वैली से इंटर होते हैं कराकरम माउंटेन रेंज में, और फिर जो पास होता है हमारा प्लान वो करने के बाद हम दूसरी वैली से हम एग्ज़िट करते हैं। तो इस तरह आपको ज़्यादा देखने को सीनरी मिलती है, आपके पास एक डाइवर्स नॉलेज आता है, आपके पास ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियो का मवाद होता है, उस एरिया का आपके पास एक नॉलेज एक अच्छा आता है डिटेल के साथ। अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हैकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ये सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला सिलसिला है, इसके सेहत पर क्या असरात हैं? कोई सेहत के हवाले से भी इसके? मैं समझता हूँ कि सेहत के लिए सबसे बेस्ट अगर स्पोर्ट्स है तो वो हाइकिंग ट्रैकिंग है। उसकी रीज़न ये कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलती है जो कि आप अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप एक्सर्ट करते हैं, आप हाइक की तरफ जा रहे होते हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा सांस चढ़ता है, आपके लंग्स ज़्यादा काम करते हैं। जब आपके लंग्स ज़्यादा काम करते हैं तो आपका हार्ट ज़्यादा काम करता है। तो जब ये दोनों वाइटल आर्गन ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में फास्ट होती है। और आप जानते हैं कि पूरी बॉडी का जो निज़ाम है वो सर्कुलेशन से ही चलता है। अगर ब्लड पहुंच रहा है तो आपके पार्ट्स हेल्दी हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है। जहाँ ब्लड की सप्लाई कम होती है तो आप अनहेल्दी या बीमार होना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हाइकिंग और ट्रैकिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, इससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और प्योर ऑक्सीजन आप बॉडी को दे रहे हैं। 1000 दर्जे सिटी में कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वो प्योर नहीं है, हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, जितनी ये वाली स्पोर्ट्स हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में आपको मिलती है। पानी आप नेचुरल ग्लेशियर का जो फ्लो हो रहा है, जो स्ट्रीम में आ रहा होता है, वो पी रहे होते हैं। डाइट आपको नेचुरल मिल रही है, डाइट आप कम ले रहे होते हैं। फिर आप रेडिएशन से दूर हैं, मोबाइल नेटवर्क से आप दूर हैं, इंटरनेट से आप दूर हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये वो, इन तमाम चीज़ों से आप कोसों दूर होते हैं आप। बिल्कुल। तो लिहाजा प्योर एनवायरनमेंट में आप 5, 10, 15 या 20 दिन गुजार रहे होते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे नए आने वालों के लिए, हैकिंग ट्रैकिंग में आने वाले दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हाइकिंग ट्रैकिंग जो है इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, जो ट्रैवल है उसको ऐड ऑन करें और छोटे ट्रैक से स्टार्ट करें, ठीक है। तो छोटे ट्रैक जो है वो मारगला में भी आपको मिल जाते हैं, आपको नथिया गली में मिल जाते हैं, आपको कलाम में मिल जाते हैं, आपको नारान में मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे की ट्रैकिंग, 2 घंटे की ट्रैकिंग से स्टार्ट करते हुए फिर 1 दिन की ट्रैकिंग के ऊपर जाएं, यानी कि 7-8 घंटे की ट्रैकिंग पे जाएं। तो इसी तरह आपका स्लो एंड स्टडी स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा और इससे आपके अंदर जो है नेचर को देखने की और नेचर के साथ इंटरेक्ट करने की, ठीक है, और आपके अंदर नेचर की एक मोहब्बत बन जाएगी, ठीक है। जब आप वहाँ से खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत वीडियोस लेके आ रहे होंगे, अपने दोस्तों को, फैमिली को जब दिखा रहे होंगे, तो आप एक नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आपका दिल करेगा कि मैं और भी ट्रैक करूं। और पाकिस्तान में इतने ट्रैक हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, ट्रैक नहीं ख़त्म हो सकते। मैं समझता हूं कि मुझे 5 ज़िंदगियां चाहिए पाकिस्तान के सारे ट्रैक करने के लिए। इतना ह्यूज पोटेंशियल है ये।
اور اتنی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں باہر کے میں نے ٹریک بھی کیے, میں نے سوئس میں, اٹلی میں نے ٹریک کیے, جاپان میں نے ٹریک کیے, لیکن جو خوبصورتی مجھے پاکستان میں ملی اور بہت سستی خوبصورتی ملی, یہاں پہ جانا مشکل نہیں ہے, کم ایکسپینس میں آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سستی والی کلودنگ خرید سکتے ہیں, لیکن اب جب بھی جائیں, ٹھیک ہے, پراپر گیئر کے ساتھ, آپ کے پاس شوز ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹراؤزر, شرٹ اور باقی نظام آپ کے پاس, اگر ونٹر میں جا رہے ہیں تو ونٹر کا سامان ہو, گرمی میں جا رہے ہیں تو گرمی کا سامان ہو, 2 دن 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو فوڈ آپ کے پاس اس طریقے سے ہونا چاہیے. دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, نیچر کی کیئر کریں کہ آپ اگر کھانے پینے کے لوازمات ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کا جو گند ہوگا, جو ریپرز ہوں گے, جو ڈبے ہوں گے, جو ٹین ہوگا, وہ واپس اٹھا کے لائیں اور ان کو شہروں میں ڈسپوز کریں, نہ کہ ان ویلیز میں گند پھینک کے آئیں اور خود آپ خوبصورت نظارے انجوائے کریں اور اس ویلی کو آپ گندا کریں. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ کل کو ہماری فیملی, ہمارے بچوں نے, اگلی جنریشن نے ان ویلیز کو دیکھنا ہے, جانا ہے, انجوائے کرنا ہے, تو ان کو ایک اچھا پیور انوائرمنٹ مل سکے. بہت شکریہ ناظرین. خالد محمود صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. بہت شکریہ علی, تھینک یو سو مچ.